Assalamu alaikum third year. Today is our third lecture about geography and we will learn today branches of geography. In the previous lecture we have seen that geography can be divided into many branches. Basic branches are there, two main branches are there. Some of the scientists say there are three branches, but mainly two branches are being studied. These are physical geography and human geography. As you know, geography is the knowledge of the world, its people, and the landscape they create. Landscapes are the physical and human features that make it unique. ठीक है, तो अब वे फिजिकल और ह्यूमन फीचर्स जो इस लैंडस्केप को यूनिक बना रहे हैं, तो उनको दो डिफरेंट ग्रुप्स में अगर हम क्लासिफाई करें तो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी बनता है. वी विल लर्न द टॉपिक्स in physical geography will include topography. Topography means the surface of the land, surface of the soil, or surface of the earth. You can say climates, formation of the climates, movement of the solar system, waters, and their types and their cycle. Soil, their formation and their types. Vegetation, again vegetation types and their formation is involved in them. Human geography is the second branch in which you will study the things related with the humans, that is population, economic activities of the people, cities which are being made by the humans, and boundaries and limits of the lands which are made by humans. Now we'll study the subdivisions of geography. These two main divisions, which include physical geography and human geography, are further classified into many subdivisions. The subdivisions of physical geography are we are studying here. Mainly, what is physical geography? It is the branch of geography that deals with the physical features and changes of the earth. Physical geography includes climatology, biogeography, geomorphology, and mathematical geography. What is climatology? Climatology is the study of the climates of the world and their relationship to man's activities. Climates, मौसम कैसे बनते हैं, ठीक है, और इनके साथ ह्यूमन के एक्टिविटीज़ का रिलेशनशिप क्या है, वो कैसे चेंज होती हैं क्लाइमेट्स के साथ. Biogeography is the second subdivision of physical geography. It is the study of physical environment and its relationship to the plants and animal life. ठीक है, bio means life. Biogeography लाइफ का अर्थ की स्टडी के साथ जो रिलेशन है उसको हम इसमें स्टडी करेंगे कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर उसका क्या रिलेशनशिप है एनिमल्स और प्लांट लाइफ के साथ. Geomorphology, geo means earth and morph means form, how earth is formed. ठीक है, जो इसका क्रस्ट है, अर्थ का क्रस्ट है, वो कैसे बना हुआ है, उसमें कैसे कहीं पहाड़, कहीं पे सहरा और कहीं पे मतलब के रेगिस्तान वगैरह आ जाते हैं. तो ये इट इज़ द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, लैंड फॉर्म्स को हम इसमें स्टडी करेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी फॉर्मेशन, उनके ओरिजिन और उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक है, फोर्थ इसकी सब डिविजन है फिजिकल ज्योग्राफी की, मैथमेटिकल ज्योग्राफी. इट इज़ द स्टडी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ द अर्थ एज अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. ठीक है, तो इसमें मैथमेटिकल मतलब कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि हम सोलर सिस्टम को पहले स्टडी करते हैं, सोलर सिस्टम का साइज़ के लिहाज से हम अपने प्लैनेट के साइज़ और फिर उसकी रोटेशन और रेवोल्यूशंस और ये सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा. ठीक है, सेकेंड मेन डिविजन ऑफ द ज्योग्राफी इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी विच इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू many classes. What is human geography? It is the branch of the social sciences that deals with the study of people and their communities, cultures, economies and interaction with the environment by noticing their relations with and across space and place. ठीक है, कि इसमें सारी मतलब कि वो सोशल साइंसेस आ जाती हैं जिनके ज़रिए हम पीपल को स्टडी करते हैं, उनकी कम्युनिटीज़ को, उनके मुआशरों को स्टडी करते हैं, उनके कल्चर्स को और उनकी इकोनॉमीज़ को.
ठीक है, कि वो किस तरह से अर्न कर रहे हैं, किस तरह से उनकी सिस्टम चल रही हैं और उनका एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है। और ये सब चीज़ें हम कैसे स्टडी करते हैं, उनके स्पेस और प्लेस के अक्रॉस जो रिलेशंस हैं उनको नोटिस करके, ठीक है। अच्छा, अब इसकी फर्दर सब डिविजन्स ह्यूमन जोग्राफी की, कल्चरल जोग्राफी, इकोनॉमिक जोग्राफी, सोशल जोग्राफी और पॉलिटिकल जोग्राफी, ये मेन आ जाती हैं इसमें, ठीक है। ह्यूमन जोग्राफी की जो फर्स्ट टाइप है, इसके अंदर सब डिविजन है कल्चरल जोग्राफी। नाम से आपको पता चल रहा है, द स्टडी ऑफ द अर्थ इन रिलेशन टू द कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ द मैन, this that is his mode of living and achievements as they are influenced by the physical environments, ठीक है, कि जो भी मैन की कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनको हम इसमें स्टडी करेंगे। सेकेंड इज द इकोनॉमिक जोग्राफी, the study of the earth in relation to the productive activities of the man. The earth is the main source of wealth such as forests, mines, soils, waters and fisheries, ठीक है, कि इकोनॉमिक जोग्राफी के अंदर आप वो सब चीज़ें स्टडी करेंगे कि जिसके ज़रिए मैन कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो चाहे तो पैसा कमा रहा है, चाहे वो मिनरल्स निकाल रहा है ज़मीन में से, चाहे वो पानी निकाल रहा है ज़मीन से खोद कर, या फिर वो पॉन्ड के अंदर फिशेस को ग्रो कर रहा है, उनकी ब्रीडिंग कर रहा है, या फिर नए वैरायटी ऑफ प्लांट्स उगा रहा है, या कुछ भी वो प्रोड्यूस कर रहा है, दैट विल बिकम इन द इकोनॉमिक जोग्राफी, कि हम प्लांट्स की वैरायटीज़ और फ्रूट्स की वैरायटीज़ और इस तरह एनिमल्स को ब्रीड करके नए नए चीज़ें बना रहे होते हैं, तो दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक जोग्राफी। जो सोशल जोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द अर्थ इन रिलेशन टू द सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। अब सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर उसकी सारी जो माशरे के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो सब आ जाएंगी, कि उनका मतलब कि रहन सहन, उनके अखलाकियात, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। उसके बाद पॉलिटिकल जोग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ इन रिलेशन टू द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ मैन। तो इसके अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज आ जाएंगी उसकी। तो इसके अंदर हम उनकी ये भी देख लेते हैं कि जो कंट्रीज़ के अंदर उनकी है डिवीज़न है, कि ये मतलब कि प्रोविंसेस हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और ये सब वो भी आ जाएंगे इसके अंदर, यानी कि जो उनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं उनको भी स्टडी करते हैं हम इसके। अदर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस जो इनके अलावा हैं, यानी ह्यूमन जोग्राफी और फिजिकल जोग्राफी वर द टू मेन डिविजन्स ऑफ जोग्राफी। जो स्मॉलर डिविजन्स ऑफ जोग्राफी हैं उनके अंदर आ जाएंगी अर्बन जोग्राफी, एग्रीकल्चरल जोग्राफी, पॉपुलेशन जोग्राफी और एनवायरमेंटल जोग्राफी। अदरवाइज अगर इनको अलग से ना भी पढ़ा जाए तो जो हमने डिविजन्स पहले पढ़ ली उनके अंदर भी ये सब पढ़े जा रहे होते हैं, ठीक है। फिजिकल जोग्राफी और ह्यूमन जोग्राफी जो है, इनको अगर आप कंपेयर और कंट्रास्ट करेंगे, कि डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम इसको इस टेबल के ज़रिए समझ सकते हैं कि फिजिकल जोग्राफी के अंदर हम रॉक्स एंड मिनरल्स की ओरिजिन, इनके मतलब के डिफरेंट जो फॉर्म्स अवेलेबल हैं अर्थ के अंदर, वाई एंड वेयर, वो सब स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह लैंड फॉर्म्स के हवाले से, सॉइल्स के हवाले से, एनिमल्स और प्लांट्स के हवाले से, वाटर, एटमॉस्फेयर, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज़ के हवाले से सब स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट का टॉपिक भी दरअसल फिजिकल जोग्राफी के अंदर ही आता है। शुरू में मैंने आपको पहले लेक्चर में एनवायरमेंटल जोग्राफी एक टाइप के तौर पर भी बताया था। अभी भी ये बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं इसको एक अलग ब्रांच के तौर पर भी इसको पढ़ाते हैं। अदरवाइज अगर इसको अलग ब्रांच ना भी लिया जाए तो हम फिजिकल जोग्राफी में इसको स्टडी कर रहे होते हैं। क्लाइमेट एंड वेदर फॉर्मेशन और ओशंस जो हैं उनके अंदर, और उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं सारी, वो भी फिजिकल जोग्राफी के अंदर स्टडी की जाती हैं। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन जोग्राफी में हम ह्यूमन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको स्टडी कर रहे होते हैं, लाइक पॉपुलेशन, सेटलमेंट्स मीन्स के सिटीज़ की फॉर्मेशन, ठीक है, कि किस तरह से मतलब कि आप फॉरेस्ट को क्लीन करते हैं और फिर सेटलमेंट्स डेवलप करते हैं, वेयर कहाँ करते हैं, वाई क्यों करते हैं, एंड हाउ कैसे होती हैं वो, ठीक है, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो अभी मैंने डिस्कस की आपके साथ, ट्रांसपोर्टेशन, कि वो अपने जो एक सेटलमेंट है वो दूसरे सेटलमेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करती है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करती है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के अंदर कल्चरल उनका बिहेवियर आ जाएगा,
और रिलीजन के अंदर भी हम मतलब कि उनके डिफरेंट जो हैं उनके कल्चर के ऊपर क्या रिलीजन का अफेक्ट आ रहा है और उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर क्या अफेक्ट आ रहा होता है, ये सब कुछ स्टडी कर रहे होते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम्स, सोशल ट्रेडिशंस और ह्यूमन माइग्रेशंस, एग्रीकल्चरल सिस्टम्स और अर्बन सिस्टम्स, ये सब जो सिस्टम्स हैं डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सब भी ह्यूमन ज्योग्राफी में ही स्टडी की जाती है क्योंकि ये सब ह्यूमन से रिलेटेड हैं। ठीक है कि अर्बन सिस्टम को आप कहते हैं कि विलेजेस से वो जो डेवलप होते हैं, विलेज डेवलप होते हैं और फिर शहर बन जाते हैं। अर्बन सिस्टम कैसे डेवलप होता है एक विलेज से, तो ये सब क्या होता है कि पॉपुलेशन ग्रो करती है और पॉपुलेशन ग्रो करने के साथ फिर सारे रिसोर्सेज जब कम होते हैं तो हम जॉब्स निकालते हैं, जॉब्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और इस लिहाज से सारा एक अर्बन सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो ये सारा ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर स्टडी किया जाएगा। इसके अलावा मेन ब्रांचेस जो हैं, मेजर ब्रांचेस ज्योग्राफी की, उनकी एक क्लासिफिकेशन का तरीका ये भी है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें एक सर्कल है और सर्कल का हाफ पोर्शन जो ऊपर वाला है उसमें आपको ह्यूमन ज्योग्राफी की क्लासिफिकेशन नज़र आ रही है और हाफ जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासिफिकेशन नज़र आ रही है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो मेन आप ब्रांचेस पढ़ते हैं ज्योग्राफी की, वो पॉलिटिकल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक और सोशल ज्योग्राफी है। ठीक है, और अगर इनको अलग साइंसेस के तौर पर देखा जाए तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, इसी तरह कल्चरल ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी। अब अगर फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ आए तो इसकी जो क्लासिफिकेशन आपने देखी कि इसमें हम क्लाइमेटोलॉजी स्टडी करते हैं विच इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ मीटेरोलॉजी। ठीक है, जो एक पूरी साइंस है। इसके अलावा एक हम और ब्रांच स्टडी करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, दैट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ जियोलॉजी एंड वी ऑल्सो स्टडी हेयर सॉइल्स जियोग्राफी which is a subject of pedology. In physical geography, we also study biogeography, which is a subject of biology, and mathematical geography, that is a subject of astronomy. ठीक है, तो ये सब इसके डिविजन्स हैं, आप इनको तैयार कर लें। और साथ में आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है इसके हवाले से, और वो ये है कि यहाँ पर ये जो सर्कल से बाहर जितनी साइंसेस लिखी हुई हैं जिनको मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, इनके मीनिंग्स आप डिक्शनरी से ढूंढकर या जो भी आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हैं किसी से भी मदद लेकर आप इसको लिखें और मुझे भेजें, व्हाट्सएप करें। ठीक है, तो मुझे फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।